Hello everyone, welcome back to C2C Mentors. My name is Rupanshi Lalge and today's video agenda is international organizations. So अगर आप लोग IIFT, ZAT, CMAT, TIS की preparation कर रहे हैं and you are looking for some material for GK, this video is for you. We'll be covering international organizations, a bunch of organizations today, and my agenda is that आप लोग during the video ही याद कर लें the heads, the headquarters, the leaders and the purpose of the organization respectively. Alright, so without any further ado, let's get started. So the very first organization is International Monetary Fund. Okay, इसका headquarter जो है वो Washington DC में है. The managing director is Kristalina Georgieva and chief economist is Geeta Gopinath. So don't confuse between MD and chief economist. That is the reason why it is on screen. Remember it in the order of hierarchy. Now, purpose जानना इसीलिए important है because कई बार हमें ऐसे questions आ जाते हैं कि ये particular चीज़ करने के लिए कौन सी organization responsible है. What is the purpose of the following organization? And you have to tick from the options. So for that, we need to understand why a particular organization is made. Also, they release a lot of magazines, so you should know magazines in research and outlooks and indexes. So you should know that who can actually make or release this particular research or index. So the purpose of IMF is to foster global monetary cooperation, secure financial stability, facilitate international trade, promote high employment and sustainable economic growth, and reduce poverty all around the world. Basically, monetary kind of cooperation जो है उसके लिए ये responsible है. Next is World Bank. इसका headquarter Washington DC में है. All right. President David Malpass, MD and CFO Anshula Kant. Okay. अब इसके अंदर दो institutions हैं, IBRD, which is Bank Reconstruction and Development, and second is Development Association, that is IDA. एक IBRD है, एक IDA है. इसका पर्पस है लोन्स देना, ग्रांट्स देना टू गवर्नमेंट्स ऑफ लो एंड मिडिल इनकम कंट्री. सो इट्स लाइक अ बैंक, जैसे हमारी नॉर्मल बैंक होती है. इट्स अ बिग बैंक फॉर द वर्ल्ड वेयर इट गिव्स लोन्स एंड ग्रांट्स टू द लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज. ये लोग उनसे जाकर लोन लेते हैं. ठीक है. अब अगर हम देखें तो दोनों ही ऑर्गेनाइजेशंस IMF एंड वर्ल्ड बैंक आर बेस्ड ऑन इन वॉशिंगटन DC. इसका काम है मॉनेटरी कोऑपरेशन करवाना and financial stability लाना all around the world, while World Bank is giving loans and grants. Okay, but both are based in USA, Washington. Now New York वाली organization हम देखते हैं, that is United Nations. ठीक है, इसमें हम confuse हो जाते हैं. तो United Nations, we have to remember New York. Secretary General Antonio Guterres. Okay, to maintain international peace and security, develop friendly relations among nations. यहाँ पर peace की बात है, security की बात है, friendly relations with nations. तो ये बहुत ज़्यादा पैसों से related नहीं है, mainly इसका काम है शांति. Okay, next is UNESCO, that is United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. Okay, इसका headquarter है पेरिस, फ्रांस. ओके हम याद रख सकते हैं कि कल्चर रिलेटेड जो भी चीज़ होती है हम फ्रांस को याद करते हैं, पेरिस को याद करते हैं. इट्स रिलेटेड टू कल्चर एंड साइंस, सो यूनेस्को. ठीक है, ऐसे हम याद कर सकते हैं. एंड द डायरेक्टर जनरल इज ऑड्री ऑज्यूले. ओके, सो पेरिस, फ्रांस, ऑड्री, यूनेस्को. नाउ टू प्रमोट वर्ल्ड पीस एंड सिक्योरिटी थ्रू इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन एजुकेशन, आर्ट, साइंस एंड कल्चर. सो इफ़ वी रिमेंबर एजुकेशन, आर्ट, साइंस एंड कल्चर, कभी भी इससे रिलेटेड कोई चीज़ आए तो दैट इज यूनेस्को डूइंग द जॉब. नेक्स्ट इज यूनिसेफ. यूनिसेफ में C अगर हम देखते हैं तो इट शोज चिल्ड्रन. सो इट्स अ चिल्ड्रन फंड बाय यूनाइटेड नेशंस. अगेन इट इज बेस्ड इन न्यूयॉर्क. इसके पहले वाला फ्रांस में था, चिल्ड्रन वाला न्यूयॉर्क में है. वी कैन रिमेंबर कि यूनाइटेड नेशंस जो हेड है, प्रॉपर हेड है, दैट इज इन न्यूयॉर्क. तो चिल्ड्रन को भी उन्होंने साथ में ही रखा है इन न्यूयॉर्क. ठीक है. देन हेड इज हेनरीटा H. फोरे. ओके, जैसे सेनोरिटा होता है वैसे हेनरीटा फॉर यूनिसेफ. ओके, देन प्रेसिडेंट इज टोरे हैटरम. तो इफ यू रिमेंबर इन दिस वे, हमें ये याद रहना चाहिए कि चिल्ड्रन वाले में दोनों ही इसमें H आता है, दैट इज हेन एंड हैट. ओके, हेन एंड हैट for head and for president. So if you remember ऐसे भी, और अगर आपको ऑप्शन में दिख जाता है तो यू कैन टिक मार्क
बाय सीइंग जस्ट द इनिशियल्स हैट्रन एंड हेन। पर्पस क्या है? प्रोवाइडिंग ह्यूमैनिटेरियन एंड डेवलपमेंट एड टू चिल्ड्रन वर्ल्ड वाइड। ये हम सबको पता है, डेवलपमेंट एड करता है ये चिल्ड्रंस के लिए ऑल ओवर दी वर्ल्ड। नेक्स्ट इज FAO। अब फूड से रिलेटेड चीज है तो इसका हेडक्वार्टर हम इटालियन फूड से याद रख सकते हैं, इट्स इन रोम इटली। ओके, सो इटालियन फूड से याद रख लो, इसका हेडक्वार्टर इज रोम इटली। नाउ द डायरेक्टर जनरल इज क्यू डोंग्यू। ओके, क्यू डोंग्यू 2-3 बार देखोगे, याद करोगे, बोलोगे, अपने आप याद हो जाएगा। देन leads international efforts to defeat hunger, improve nutrition and food security. Okay, तो इसका मेन काम क्या है? हंगर, न्यूट्रिशन, फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड एफर्ट्स करना इंटरनेशनली। ओके, इट इज नेम इज फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ओके, नाउ WHO हेल्थ के बारे में हम बात कर रहे हैं, दैट इज जिनेवा, स्विट्जरलैंड। ओके, इफ यू वांट कि कैसे याद रखना है तो मैं ऐसे बोल सकती हूँ कि हेल्थ जीन्स रिलेटेड हम याद रख सकते हैं, जेनेवा जीन्स हेल्थ। ठीक है, डायरेक्टर जनरल टेड्रोस एडहेनोम। ठीक है, पर्पस है रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ। हम ये चाहते हैं कि सबकी हेल्थ जो है वो रिस्पॉन्सिबली देखी जाए, एफर्ट्स लगाए जाएं, तो इसका मेन काम ये है। व्हाई दिस इज इम्पॉर्टेंट? ऑब्वियसली वी ऑल नो पैंडेमिक इज देयर, तो पैंडेमिक रिलेटेड वी कैन एक्सपेक्ट वन क्वेश्चन ऑन दिस, तो हमें याद है। ठीक है, ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। अब इसमें अगेन जेनेवा, स्विट्जरलैंड, तो हमको 2 चीजें याद रखनी है जेनेवा में, अभी तक हमने जो पढ़ी उसमें है WHO और ILO। ठीक है, हेल्थ और लेबर। हम ऐसे याद रख सकते हैं कि लेबर की हेल्थ खराब होती रहती है, हो सकती है, बिकॉज दे आर वर्किंग सो हार्ड एंड देयर जॉब इज कम्प्लीटली मैनुअल, तो उनकी हेल्थ खराब हो सकती है, इसलिए दोनों का एक ही जगह हेडक्वार्टर रखा है, दैट इज जेनेवा। ठीक है, तो इस तरह से हमने याद कर लिया। देन डायरेक्टर जनरल इज गाय राइडर, सो ये हमें कैसे याद रहेगा? लेबर इज अ गाय, ओके, अ गाय इज डूइंग लेबर, सो गाय राइडर इज लेबर ऑर्गेनाइजेशन का डायरेक्टर जनरल। फाइन, पर्पस इज टू एडवांस सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस थ्रू सेटिंग इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड्स। सो वी आर ट्राइंग टू get the justice through setting international labor standards. Standards अगर रहेंगे, एक किसी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू सेट करे रहेंगे, then obviously we can expect a form of social and economic justice for that particular class. Okay, again एक और हेडक्वार्टर जिसका जेनेवा है, that is WTO. तो अभी तक हमने देखा हेल्थ, लेबर एंड ट्रेड। ओके, नाउ हेल्थ अच्छी हो गई लेबर की, अब वो ट्रेड कर रहा है, इन तीनों को हमने जेनेवा में रखा है। ठीक है, डायरेक्टर जनरल इज नजोकी ओजिनको आईवियाला। ओके, द पर्पस इज रेगुलेट्स एंड फैसिलिटेट्स इंटरनेशनल ट्रेड बिटवीन नेशंस। ऑलराइट, वेरी इजी। नेक्स्ट इज UNDP। अब अगेन हम UN के किसी चीज पर आ गए हैं, इनके अलग अलग डिपार्टमेंट्स में। सो UNDP इज न्यूयॉर्क, अगेन न्यूयॉर्क। हेड इज एशिम स्टेनियर। हेल्प कंट्रीज एलिमिनेट पॉवर्टी। अगर डेवलपमेंट प्रोग्राम है तो वो क्या करेगा? डेवलपमेंट में सबसे पहला उसका काम होगा एलिमिनेशन ऑफ पॉवर्टी, देन अचीव सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। ठीक है, और ये लार्जेस्ट UN डेवलपमेंट एड एजेंसी है। ओके, तो हमको इसमें याद क्या रखना है? पहले तो UNDP इज बेस्ड इन न्यूयॉर्क, इट हेल्प्स कंट्रीज एलिमिनेट पॉवर्टी एंड अचीव सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ। Now, coming to the next organization, that is IAEA. It is International Atomic Energy Agency. इसका हेडक्वार्टर है वियना, ऑस्ट्रिया। इसे हम ऐसे याद रख सकते हैं कि एटम्स जो हैं एंड ऑस्ट्रिया बोथ स्टार्ट्स विथ A, बट फॉर वी यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हाँ, ऑस्ट्रिया के अंदर वियना में आता है, बट एटॉमिक ऑस्ट्रिया। ओके, A से आप याद रख सकते हो। अब राफेल मैरियानो ग्रोसी, ठीक है, is the head. The purpose is seeks to promote the peaceful use of nuclear energy. क्यों बना होगा ये एजेंसी? Peaceful use of nuclear energy and to inhibit its use for any military purpose including nuclear weapons. तो कभी भी इस टाइप की चीज़ के बारे में आपको कोई ऑप्शन दिखे, कोई क्वेश्चन दिखे, you can straight away think IAEA is responsible for these kind of setting. Now, एशियन डेवलपमेंट बैंक, पहले हमने वर्ल्ड बैंक देखा था, अब हम एशियन डेवलपमेंट बैंक देख रहे हैं। इसका हेडक्वार्टर हमारे एशिया में ही कहीं होगा, सो दैट इज फिलीपींस, मनीला फिलीपींस। देन प्रेसिडेंट इज मैसाचुसेट्स
असाकावा. ओके, तो अगेन द हेड इज स्टार्टिंग विथ ए, हम ऐसे याद रख सकते हैं. एशियन डेवलपमेंट बैंक का असाकावा नाम है. देन पर्पस टू रिड्यूस पॉवर्टी इन एशिया. अब इसका काम क्या होगा, यहाँ पे रिड्यूस करना पॉवर्टी. एंड द पैसिफिक थ्रू इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ, एनवायरमेंटली सस्टेनेबल ग्रोथ एंड रीजनल इंटीग्रेशन. हम इंटीग्रेशन चाहते हैं, पॉवर्टी रिड्यूस करना चाहते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ चाहते हैं, ऑल ऑफ दीज थिंग्स. सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक अवे इज एशियन डेवलपमेंट बैंक, असाकावा एंड फिलीपींस. नाउ कमिंग टू न्यू डेवलपमेंट बैंक. इसके बारे में हमने कल वाले वीडियो में भी देखा था, बट एक बार और देख लेते हैं. एनडीबी जो है ये ब्रिक्स ने बनाया था. ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक. इट्स हेडक्वार्टर इज इन शंघाई, चाइना. ठीक है, सो द प्रेसिडेंट इज मार्कोस प्रादो त्रोइजो एंड एम्स टू मोबिलाइज रिसोर्सेज फॉर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इन ब्रिक्स. इसका मेन काम है कि यहाँ पे अगर कोई भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट आता है ब्रिक्स में एंड इमर्जिंग इकोनॉमीज इन डेवलपिंग कंट्रीज में, तो इसका काम है मोबिलाइज करना रिसोर्सेज, ट्राइंग टू मोबिलाइज द रिसोर्सेज फॉर द डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स. न्यू डेवलपमेंट बैंक शंघाई में है, इसका हेडक्वार्टर इज इन शंघाई. ओके, BRICS. BRICS is the acronym coined to associate 5 major economic emerging economies, that is Brazil, Russia, India, China, South Africa. I think everybody must be knowing this, and it is known for significant influence of regional affairs. ASEAN. Its headquarter is in Jakarta, Indonesia. ASEAN की जो 10 countries हैं वो यहाँ पर दी हुई है, आप एक बार पढ़ लो. You will remember all of them. काफ़ी न्यूज़ में रहता है. थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, सिंगापुर, Myanmar, Indonesia, Laos, Malaysia, Brunei, Philippines. Also, if you see in the map, you will understand कि कहाँ से कहाँ तक ये extend होता है. So, it is a group of 10 member states and it promotes intergovernmental cooperation and facilitates political, economic, security, military, educational, etc. integration in the Asian region. For Asian countries. सार्क, अब मैंने यहाँ पर 8 बना दिया ताकि आपको याद रहे. सार्क 8, सार्क 8. ओके, इस तरह से आप याद रख सकते हो. इसमें 8 कंट्रीज हैं फॉर इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 8 कंट्रीज इन साउथ एशिया. सो हियर द नेम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड द हेडक्वार्टर इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. इट्स नेपाल हेडक्वार्टर. Again, the purpose is very simple, promotes development of economic and regional integration. The main member countries are Maldives, Nepal, Pakistan, Sri Lanka, India, Bhutan, Bangladesh, Afghanistan. So if you see India at the center, you will see India से पाकिस्तान, अफगानिस्तान है लेफ्ट में. You will see Bhutan, Bangladesh, okay, 2 with B, and then 1 is down Sri Lanka, and then Nepal, Maldives. तो एक ही है मालदीव्स जो थोड़ा अलग है, बाकी सारे हमारे आसपास के ही नेबरिंग कंट्रीज हैं. एंड द मेन वन इज द हेडक्वार्टर इज नेपाल. कमिंग टू G7, इट इज an intergovernmental political forum consisting Canada, France, Germany, Italy, Japan, United Kingdom and United States. ठीक है, it is mainly the advanced economies and wealthiest liberal democracies that are its members, and it was referred to as G8 until Russia was suspended from the group in 2014. तो मेनली ये सारे डेवलप्ड कंट्रीज हैं, इनका एक पॉलिटिकल फोरम है जो G7 कहलाता है. G20 is an intergovernmental forum comprising of 19 countries and the European Union. So it is G19 groups plus 1, that is European Union, and it works to address major issues related to global economy such as international financial stability, climate change, mitigation, sustainable development, etc. तो सारे issues के ऊपर ये लोग address करते हैं. और India has also been a part of it. That is here, as you can see in the image. And India becomes part of this. Troika will host summit in 2023. Okay, so here we have completed a lot of organizations and I hope that आपको बहुत सारी चीज़ें mnemonics के through, कुछ थोड़े बहुत correlation जो हमने try किए करने के, उससे याद रहा होगा. I would suggest if you want you can go through the video again, and in the examination I think this video and some of the words that I have just spoken will really help you to recall. I wish you all the best. If you are looking for any course, any master program for
exams related to non-CAT or CAT 2022, you can visit the website and you can also WhatsApp us. We will definitely get back to you. Thank you so much for watching. Bye bye.